Question says, with all the information given below, prepare income and expenditure account and the balance sheet of Sudarshan Charitable Organization for the year ended 31st March 2012. 31st March 2012. Then, recent payment account for the year ended 31st March 2012. To balance brought down, cash in hand, cash at bank. These are opening balances, previous year balance. ठीक है. Subscription, we are into current year 11-12. Subscription 81,000 includes rupees 5,500 for previous year. So 5,500 is of the some previous year, 9, 10, 10, 11 and 11, 12. मतलब ये previous year का previous year है, मतलब past year है. Interest on investments, income है. Sale of furniture. If you have sold the furniture, during the year, मतलब या तो वो opening से होना चाहिए या you should have purchased somewhere during the year. You are not purchased, right? आप यहाँ पे furniture purchase दिख रहेगा आपको? नहीं, मतलब you are not purchased furniture during the current year. It means it has to be in the beginning. So ये आ गया opening में, ये भी आ गया previous year, ये भी आ गया previous year. Then salaries expense, printing and stationery expense, charity expense, investments are asset, current year asset, huh? Office expenses, then closing assets. Closing asset. There are 800 members paying annual subscription of rupees 800 each. 800 members paying annual subscription of 800 each, 100 each. That is 8,000. 80,000. Total subscription is 80,000. Income should be 80,000. Then outstanding salary, add in expense, add in liability. Add in expense, add in liability. Then assets at the beginning of the year. Assets at the beginning of the year. फर्नीचर 40,000. ओके, मतलब इस 40,000 में से 10,000 का सेल हुआ है. इस 40,000 में से 10,000 का सेल हुआ है. क्लोजिंग में 30,000 बाकी है. ठीक है. सो वही मैं बोल रहा हूं, अगर फर्नीचर नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे फर्नीचर नहीं लिखा होता तो मैं 10,000 लेता. कितना लेता? 10,000 लेता. बुक वैल्यू उतना लेता. बट दे हैव, मतलब मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलवेज मिनिमम, मतलब कम से कम जितना रिसेंट पेमेंट में उतना तो रहेगा ही रहेगा. ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलवेज मिनिमम, मींस जितना रिसेंट पेमेंट में है उतना तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेफिनेटली रहेगा. आगे इन्वेस्टमेंट 20,000 प्लस हमने इस साल में कुछ तो 60,000 की परचेस की है, 80 हो जाएगी क्लोजिंग में. लैंड 1 लाख, कैपिटल फंड 2,05,500. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. वर्किंग नोट. वर्किंग नोट. लेट्स गो फॉर इट. या solution. Solution. Opening balance sheet as on 1st April 2000, 1st April 2011. फर्स्ट अप्रैल 2011 लिखो. क्या क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है?
कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक 539,500. देन आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिनिमम होगा वो 5,500. कौन सी ईयर का था ये? 9-10. देन फर्नीचर मिनिमम 10,000 होना चाहिए, नीचे लिखा है इट इज 40,000. फर्नीचर 40. देन इन्वेस्टमेंट्स 20. देन लैंड 1 lakh. लैंड 1 lakh. देन ठीक है आगे कैपिटल फंड 2,05,500. कैपिटल फंड if there is anything on the liability side, if there is anything on the liability side, sorry, if there is anything on the payment side which of the previous हो liability में लिखता, कुछ नहीं है. मैं बैलेंस शीट शुड के टेल यू. Therefore 1 lakh, 1,20,000, 1,60,000, 1,60,000 plus 40, 2 lakhs, 2 lakhs 5,500. टैली हो गई? यस. लिखो, मेक इट फास्ट. सो योर ओपनिंग बैलेंस शीट इज टैलीड एट 2,05,500. अब अपने लिए क्वेश्चन इजी हो गया. ठीक है आगे लिखो. या लिखो. कंप्लीट करो ये ओपनिंग बैलेंस शीट एंड लेट्स स्टार्ट विद द राइट क्लोजिंग बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. Therefore if we write opening balance sheet on the top of the closing balance sheet, it's your choice. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है जनरली वर्किंग नोट में करनी चाहिए. योर मेन आंसर इज इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. ठीक है योर मेन आंसर इज इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. लेट्स स्टार्ट.
गुड. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Inner column, outer column. Then there is a balance sheet. आगे therefore ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Income and expenditure account and balance sheet. Let's start. उसमें से ओपनिंग कैश कैंसिल हो जाएगी, ओपनिंग बैंक बैलेंस कैंसिल हो जाएगा, इवन 5,500 भी कैंसिल होने वाला है आउट ऑफ दिस 81,000. ठीक है, बाकी बैलेंस शीट में वैसे के वैसे रहेगा. तो ठीक से लिखते हैं, चलो. फर्नीचर 40,000, या पहले लैंड लिखते हैं, लैंड 1 लाख. फिक्स एसेट पहले लिखो, लैंड 1 लाख. देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट 20,000. फर्नीचर है, उसके बाद पहले फर्नीचर. लैंड में कुछ परचेस वगैरह है क्या साल भर में? नहीं है, आप उसको बाहर लिख दो. डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा लैंड पे, बिकॉज लैंड इज लैंड इज नॉन डिप्रिसिएबल फिक्स एसेट. फर्नीचर इज 40,000 ओपनिंग में. देन आगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 20,000. इन्वेस्टमेंट्स 20,000. आगे उसके बाद लैंड हो गई 1 लाख की, फर्नीचर हो गया 40,000 का, इन्वेस्टमेंट 20, कैपिटल फंड 2,05,500. 2,05,500. देन लेट्स स्टार्ट. रिसीट एंड पेमेंट. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस वो उधर गया, क्लोजिंग ओपनिंग एसेट में गया, और वहां से हमने उसका एक इफेक्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 81,000 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. $81,000. Then interest on investment 1,800. Interest on investment. Interest on investment 1,800. शायद से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का रेट भी नहीं दिया है, सो बाहर लिख दो. आगे उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर. 10,000 का फर्नीचर 8,000 में सेल हो गया एट ए लॉस ऑफ 2,000. सो फर्नीचर से माइनस होगा ऑलवेज बुक वैल्यू लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. $10,000 का फर्नीचर आपने सेल किया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. हम क्या लेते हैं? बुक वैल्यू हमेशा, बिकॉज जो 40,000 है वो बुक वैल्यू है, तो उससे बुक वैल्यू माइनस होगी.
कोई डिप्रेशन के बारे में नहीं लिखा, नहीं तो 30,000 पे मैं रिमेनिंग 30 पे डिप्रेशन देता। सो आउटर कॉलम में 30,000 सोल्ड एट 8,000 एट ए लॉस ऑफ 2,000 टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट आगे, उसके बाद सैलरीज 18,000, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट है 18,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000, कोई अनयूज स्टेशनरी है, कोई स्टेशनरी बिल पेएबल है क्या, एक्सपेंस में ऐड करके लायबिलिटी में ऐड करना, कुछ नहीं सर, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो जितना पेड है उतना एक्सपेंडिचर है। जब एडजस्टमेंट नहीं रहती ना, जो पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर रहेगा, जो रिसीट रहेगी वो इनकम रहेगा, अगर हमको जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000। देन आगे उसके बाद चैरिटी एक्सपेंसेस 20,000। देन आगे इन्वेस्टमेंट 60,000 एड इन एसेट एडिशन, टोटल हो गया 80,000। देन उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक क्लोजिंग, कैश इन हैंड इज 700, कैश एट बैंक इज 10,100। नेक्स्ट आगे, ठीक है। सो हो गया यहां तक, यस। अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक क्या क्या लिखा है, पढ़ो ठीक से। सब्सक्रिप्शन इनमें करेंगे हमेशा की तरह। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर 2,000, एड इन एक्सपेंस एड इन लायबिलिटी, total salary is 20,000, add in expense add in liability, उसके बाद हाँ एसेट्स एट द बिगिनिंग वो लिख दी हमने। अब एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, सब्सक्रिप्शन लेस 81,000 में से रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर दो चीजें माइनस करते हो, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ऑलवेज रिमेंबर, और दो चीजें ऐड करते हो, ऐड ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, इस ईयर का पहले जो मिला होगा, एंड फोर्थ थिंग दैट यू ऐड इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है। दो चीजें माइनस होगी, दो चीजें ऐड होगी। 81,000 में से 5,500 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं है, लायबिलिटी में कुछ नहीं जाएगा। ये 5,500 जो रिसीव्ड है वो यहां से माइनस होगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका ओपनिंग वाला,
प्रीवियस ईयर 19, 5500 में से राइट 5500 रिसीव्ड हो गए, 5500 में से 5500 रिसीव हो गए, इसलिए 0। 5500 में से 5500 रिसीव हो गए, उसके बाद राइट रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं, जो यहां से माइनस करके रिसीट से माइनस करके लाइबिलिटी में डालेंगे। ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, जो ओपनिंग लाइबिलिटी से यहाँ पे लेके आएंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर टोटल इनकम इज 80,000। दिस 80,000 इज 800 members multiply by rupees 100 each, 80,000. So अभी तक you have received, if it is 75,500, so outstanding for the year is 4,500. Add in income, add in asset, this is missing figure. Add in income, add in asset, यहाँ पे आ जाएगा current year outstanding 11-12, 4,500, current year outstanding 4,500। आगे गुड। कहां तक आए हम? 1 2 3 4 डन, ठीक है, गुड। Therefore let's see, 81,800 credit total, which is then 800 चाहिए to make 800, then 20 40 60 62 64 64 plus 7 71 plus 10 17,800, perfect, to surplus, excess of income और expenditure, यहाँ पे ऐड हो जाएगा surplus। कितना है surplus? 17,800। 300 1 carried, 8 13 1 carried, 2,20,300। Therefore it is 2,25,300, perfect। यहाँ पे 1,00,000 1,30,000 2,10,000 2,20,000 2,25,000 20 24 24 plus 1,300 2,25,300, इट्स टैलीड। ले लो, चलो जिनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना है जल्दी करो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है तुरंत। गुड गुड। ठीक है, now the next question, ध्यान देना।
कौन सा हुआ अभी? क्वेश्चन नंबर 23 हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी ना तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देना क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में। द फॉलोइंग इज द रिसेंट पेमेंट ऑफ स्टार सिटीजन एसोसिएशन बिसलपुर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012, 11-12 year, current year. Recent payment account for the year ending 11-12. This is opening balance, previous year 5,500. Subscription previous year, current year, next year. So minimum 3,900 ओपनिंग असेट में होनी चाहिए, अब एसेट साइड पे होनी चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा। एंट्रेंस फीस कैपिटल में ऐड करना है। डोनेशंस कुछ नहीं लिखा तो इनकम, कुछ लिखा है डोनेशन के बारे में? नहीं, नीचे नहीं लिखा है एंटायर अमाउंट ऑफ लीगसीज and 50% of the donations are to be capitalized. So 50% capitalized, 50% income. Legacies लिखते नहीं तो भी हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इनकम, पिकनिक रिसीट्स माइनस पिकनिक एक्सपेंस। एक्सपेंस इज मोर देन द रिसीट तो लॉस है, पिकनिक पे लॉस है, राइट, एनपीओ का लॉस है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे हम लिखेंगे पिकनिक डेफिसिट या पिकनिक एक्सपेंस लेस रिसीट। पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी परचेस एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट इज असेट, पिकनिक एक्सपेंस अभी डिस्कस किया, सैलरीज, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस एवरी ईयर होगी ना, रिकरिंग है, रेवेन्यू इन द नेचर, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑब्वियसली एक्सपेंस, फर्नीचर इज असेट, परचेस्ड क्लोजिंग असेट में आएगा, बैलेंस कैरी डाउन इज अ क्लोजिंग असेट। देन आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट, ओह तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट है, एड इन इनकम, एड इन असेट, एड इन असेट, ओह अब शायद से गेन हो जाएगा। रिसीव्ड इज 5,750, आउटस्टैंडिंग इज 4,250, टोटल पिकनिक रिसीट्स आर 10,000, टोटल पिकनिक रिसीट्स आर 10,000 माइनस एक्सपेंस 7,100, तो इनकम साइड पे लिखेंगे, राइट। मुझे लगा था ये आउटस्टैंडिंग नहीं है तब लॉस था, बट देयर इज रिसीवेबल, सो कितने का लॉस है? 2,100 का लॉस, गेन है, 2,100 का गेन है। आगे नेक्स्ट 2,100 का गेन है। फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1st October 11 and to be depreciated at the rate of 10% per annum. फर्नीचर परचेस किया 1st October 11 को, ईयर खत्म हो रहा है 31st March 12 को। सो कैन आई से इट इज परचेस एंड यूज फॉर 6 months ड्यूरिंग द ईयर। 6 months पहले, ईयर खत्म होने के 6 months पहले परचेस हुआ है, यूज 6 months, अकॉर्डिंगली इट हैज बीन यूज्ड फॉर 6 months, सो हम 6 months का डेप्रिसिएशन देंगे। आगे नेक्स्ट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, एड इन इनकम, एड इन असेट, एड इन इनकम, एड इन असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन ढूंढना होगा, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा। एक्सपेंडिचर साइड पे ओपनिंग स्टॉक 6,650 प्लस परचेसेस 6,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,150, कंजम्पशन आएगा। आगे लिखा है एंटायर अमाउंट ऑफ लीगसीज 50% डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट,
You are required to prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2012. They are not asked you to prepare balance sheet. उन्होंने खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने को बोला है. करे स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यस सर. क्या पूछा है पर देखो बस. ठीक है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नो नीड. अगर इनकम एक्सपेंडिचर ही करना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं. क्यों? ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए चाहिए. ठीक है. तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. राइट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. For the year ended. For the year ended 31st March. 31st March 2012. इनकम एंड एक्सपेंडिचर करना है बाकी नहीं. लेट्स स्टार्ट. टू देखते हैं. ये टू बैलेंस बर्डन ओपनिंग एसेट में आएगा. हमें नहीं करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट, ना ही करनी क्लोजिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन 87,900 बाय सब्सक्रिप्शन. रिसीव 87,900. हमेशा की तरह 5-6 लाइन रहने देना. इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है, कैपिटल फंड में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा. डोंट वरी. डोनेशन 50% आएगा इनकम में बाय डोनेशन. %50 ऑफ 50,000. 50,000 का 50% इनकम में आएगा. दैट इज 25,000. 25,000. देन उसके बाद लीगसीज कैपिटल फंड में ऐड होगा, इनकम में नहीं आएगा. डोंट वरी. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 30,000 आएगा. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रेट नहीं दिया, डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है. so, जो भी रिसीव्ड है वो इनकम लेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इज 30,000. देन बाय सरप्लस फ्रॉम पिकनिक. सरप्लस फ्रॉम पिकनिक. थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे. ठीक है. पिकनिक रिसिट्स picnic receipts are how much? Picnic receipts are 5750. 3-4 लाइन रहने देना. उसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस 1,500 टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम. $1,500. देन उसके बाद स्टेशनरी परचेस है तो स्टेशनरी कंज्यूम चाहिए. स्टेशनरी कंज्यूम लिखो. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस
सब टोटल लेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक एक। ओके नेक्स्ट, आगे पोस्ट स्टेशनरी परचेसेस 6000, स्टेशनरी परचेसेस 6000। उसके बाद एफडी असेट में जाएगा, कोई उसका रेट वगैरह दिया क्या? कुछ नहीं दिया, चलो। पिकनिक एक्सपेंसेस यहां से माइनस होंगे, यहाँ पे लाइन रहने दो, एक सबटोटल लेने के लिए लाइन रहने दो, फिर लेस एक्सपेंसेस, पिकनिक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ना कुछ, 7100। हमेशा इसे सेम नेचर के जो इनकम्स एंड एक्सपेंस होते हैं ना, उनको साथ में रखने का, सेम नेचर के। आगे उसके बाद 7900, सॉरी मैंने 100 लिखा है, दे आर 7900, 7100। उसके बाद सैलरीज 20000, 2 सैलरीज, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, बाहर 20000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20000। देन एनुअल गैदरिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस 4500, एजीएम टू एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस, एजीएम। एवरी ईयर आपको फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट करने के लिए एक मीटिंग रखनी होती है आपके स्टेक होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर्स नहीं बोला, स्टेक होल्डर्स मतलब ओनर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज। देन 4500। देन उसके बाद 4500 इंश्योरेंस प्रीमियम 3450, 3450 इज इंश्योरेंस प्रीमियम। देन आगे उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 4800, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4800, 4800। नेक्स्ट फिर है फर्नीचर 26000, फर्नीचर असेट में ऐड होगा, इधर नहीं, और क्लोजिंग असेट असेट में ऐड होगा, इधर नहीं। देन उसके बाद हमें अब एडजस्टमेंट देखने, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स, एड इन इनकम, एड इन असेट 4250, एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिसीट्स 4250 असेट में जाएगा। असेट तो हमें करने को नहीं बोला है, दूसरा इफेक्ट असेट में जाएगा। दिस इज 10000 minus 7900, total gain surplus from your picnic is 2100। then आगे फर्नीचर परचेस एट द मिड ऑफ द ईयर, तो वो उसका डेप्रिसिएशन आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहां पे दिखाता हूं कितने का फर्नीचर, 30,000 का कुछ, तो 26,000 का फर्नीचर परचेस किया था। देखो 26,000 का फर्नीचर था एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। 26,000 पे 10% फॉर 6 months, 26,000 पे 10% फॉर 6 months, 10% आएगा 2600, 6 months का आएगा 1300, 1300। देन आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1 डन, एडजस्टमेंट 2 डन, एडजस्टमेंट 3, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ढूंढते हैं, वहां पे आना ही हमें। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग 650, ओपनिंग स्टॉक 650, क्लोजिंग स्टॉक 1150, 1150 क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग असेट में आएगा, जो हमें करनी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग असेट में आएगा, वो भी हमें नहीं करनी है। सो 650 एंड 1150, सो इसके सब टोटल आ गए 6650
minus 1150. I think it is 5,500. It is 5,500. 5,500. ठीक है, 5,500. Then consumption is 5,500. Purchase is not expense. Consumption is an expense. आगे next, उसके बाद entire amount of legacies वो कैपिटल फंड में जाएगा. 50% डोनेशन इनकम में आ गया. चलो सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करते हैं. लेस दो चीजें माइनस हो गई. रिसीट साइड से दो, रिसीट से इनकम ढूंढने के लिए रिसीट से दो चीजें माइनस हो गई. लेस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. ऐड, दो चीजें ऐड होगी. ऑलरेडी रिसीव्ड, already received in previous year, already received in the previous year, and plus outstanding for current year. दो चीजें माइनस होगी, दो चीजें ऐड होगी. ठीक है. सो जो 87,900 है, 87,900 उसमें से 3,900 प्रीवियस ईयर का है. रिसीट से माइनस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट से माइनस होके क्लोजिंग में उतना कम रहेगा. ठीक है, मतलब उतना जो रिसीवेबल था ओपनिंग में मिनिमम 3,900 रहेगा, उसमें से 3,900 से आगे बाकी वैसे के वैसे रहेंगे. रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर 2,500, 2,500. इसलिए करंट ईयर का अपने आप आ गया 81,500. ये रिसीवेबल से माइनस होगा, ये लायबिलिटी में जाके बहेगा रिसीव्ड इन एडवांस. दिस इज इनकम. सो 87,100 व्हाटएवर रिसीव्ड इज नॉट इनकम. जो रिसीव्ड है उसमें से जो करंट ईयर का है वो इनकम होता है. ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. कुछ लिखा है क्या? नहीं. ओपनिंग लायबिलिटी में कुछ है क्या? नहीं. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे हैव गिवन यू. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर नीचे कहां पे तो लिखा है, देखो एडजस्ट नंबर 3. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,200. This is 700. Then 89,700. 89,700 is your subscription income. ठीक है. Let's see. Therefore, let's find out surplus or deficit. आप इस पिकनिक को है ना, रिसीट को इनकम में लिख सकते थे और पेमेंट को एक्सपेंस में भी लिख सकते हो, फिर भी आंसर उतने आएगा. आप इसको इस 10,000 को इधर लिख सकते थे एंड इस 7,900 को इधर लिख सकते थे, स्टिल आंसर रिमेन सेम. ठीक है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. वी हैव दैट मच टाइम. देयरफॉर इट इज 800. देन 89 plus 89 plus 2, 89 plus 2, सॉरी दिखेगा नहीं आपको. हाँ, 89 plus 2 is 91. 91 plus 5, 96 plus 20, 116. 116 plus 30, 146. 146,800 minus expenses 500, 1,000, 1,500, 1,500, 1,800, 2,600, 2,600 plus 3,050. 3,050 मतलब मुझे 750 लेना होगा 800 के लिए. 3 कैरिड, 3 कैरिड, 3 कैरिड. ठीक है, 3 कैरिड आएगा. 4 4 प्लस 5 9 9
29, 29, 33, 36, 40, 41, 41 मतलब 105,750, 105,750. Yes, Tejas, कोई क्वेश्चन है? तेजस in there, you raise the hand. Tejas, if yes, then I will unmute you. Tejas, okay, to surplus मैं यहाँ पे करता हूँ. Okay, let me unmute you. हाँ तेजस. सर आपने एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर ने लिया? कौन सा? बैलेंस उसमें है ना, देखो. हाँ बोल ना. हाँ अमाउंट बोल. अमाउंट 2500. 2500 which फॉर करंट ईयर भी है ना रिसीव हुआ? माइनस हो जाएगा ना. माइनस किया है मैंने. 2500 मैंने माइनस किया है. रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर. रिसीव्ड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर. समझा या नहीं समझा? ओके, हाँ इसलिए. ठीक है. यस, नो इश्यूज. नेक्स्ट ईयर का इधर से माइनस होकर लाइबिलिटी में जाएगा. ठीक है, इधर से माइनस होकर लाइबिलिटी में जाएगा. गुड. सिंपल क्वेश्चन था. देखो आप बोल सकते हो हम कैपिटल, हम फिर भी बैलेंस शीट कर सकते हैं, बट हमारी बैलेंस शीट में हमें जो नहीं दिया है वो सब हम एज्यूम करेंगे कि वैसे के वैसे. सो आई डिड द बैलेंस शीट बट इट डिडंट टैली. तूने ओपनिंग बैलेंस शीट की है क्या? कैपिटल फंड लिया क्या ओपनिंग का? तुम्हारे में यहाँ पे निकाल के दिखा. देखो जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा है. ओपनिंग बैलेंस शीट जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन वहां से देखो. 5,500 कैश, देखो मैं कैसे बैलेंस शीट करता हूं. अब देखो मेरा करने का तरीका. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन, मैं अलग अलग तरीके ढूंढता हूं करने के. एक, ओपनिंग क्लोजिंग. सिंगल एंट्री में कैसे लिखते थे वैसे. कैश, ओपनिंग कैश 5,500, क्लोजिंग 17,000. देन नेक्स्ट, और क्या ओपनिंग में 3,800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये तो साल भर में रिसीव्ड है. क्लोजिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है? ऐड 8,200. देन उसके बाद लेट मी चेक. फिर इंफॉर्मेशन में कुछ दूसरा दिया है क्या? नहीं. ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ओपनिंग स्टॉक इज 651,150. देन उसके बाद अच्छा कुछ है क्या और? नहीं. अब हमें कैपिटल ढूंढेंगे. ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा आपको. ओपनिंग कैपिटल विल बी, लेट मी फाइंड आउट, लेट मी यूज कैलकुलेटर. कुछ जरूरत नहीं वैसे ओपनिंग क्लोजिंग करने की. दिस इज 10,050. क्लोजिंग में आएगा 10,050 प्लस क्या क्या आने वाला है देखो. एंट्रेंस फीस 2,000, देन डोनेशन 50% आने वाला है, विच इज 25,000 आई थिंक. यस. उसके बाद लीगल फीस भी शायद से, लीगल फीस 10,000. सब कैपिटल में ऐड होने वाला है.
सरप्लस भी ऐड होने वाला है, विच इज 1,05,750। ठीक है, ये कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद लेट मी चेक, ओके। उसके बाद आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिट, एड इन इनकम, एड इन असेट। ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में। एड इन इनकम, एड इन असेट 4250, एड इन इनकम, एड इन असेट। उसके बाद था लेट मी चेक, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर था? फर्नीचर यू हैव परचेज फॉर हाउ मच? 26,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,300, 26,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,300, जो भी वैल्यू है मैं निगेटिव में ले रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रैकेट मतलब निगेटिव। आगे डेप्रिसिएशन नेट पे दिखेगा। आगे उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,200 लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे उसके बाद नेक्स्ट ईयर में से आएगा कैश 17,000 लिख दिया मैंने। कैश आई हैव रिटर्न ऑन, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट 1 लाख, एफडी 1 लाख की परचेस की है। लेट्स सी, ओपनिंग बैलेंस शीट में से मुझे मिल गया 10,050 कैपिटल फंड, उसको मैंने क्लोजिंग में लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस प्लस 2,000 इंट्रेंस फीस प्लस 25,000 डोनेशन प्लस 10,000 लीगेसीज प्लस 1,05,750 सरप्लस लाइब्रेरी टोटल आ रही है 1,52,800 माइनस 17,000 माइनस 8,200 माइनस 1,150 माइनस 4,250 माइनस 26,000 प्लस 1,300। क्यों 1,300? बिकॉज वो निगेटिव है तो नेट लेना चाहिए ना आपने। प्लस माइनस 1 लाख, अभी भी 2,500 का डिफरेंस है। 2,500 ये रिसीव्ड एडवांस है, 2,500 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 2,500। या एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया टैली। 155 300 इज अ टोटल। लिखो एवरीवन, चलो लिखो, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। इफ दे आस्क यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट देन लिखो। कैसे नहीं टैली हुआ? अब जिन्होंने बैलेंस शीट की और जिनका टैली नहीं हुआ, दे हैव टू थिंक क्यों टैली नहीं हुआ। सोचो किधर गलती की, ले लो। हाँ, मेक इट फास्ट। कैश आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो मैंने कैसे, मैं हमेशा ऐसे बैलेंस शीट करता हूँ, बट एग्जाम में ऐसी बैलेंस शीट करने से मार्क्स मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं, इसलिए हम अलग अलग करते हैं। हम कॉलमनार कर सकते हैं ना, उससे हर चीज 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको उतना समझ में आता है, ऐसे वर्किंग नोट के लिए आप कर सकते हो चेक करने के लिए। लिखो
समझा? यस और नो? यस और नो? फर्नीचर एडजस्टमेंट मैंने माइनस किया है ना। फर्नीचर कितने कब 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 लिया है देखो ना। फर्नीचर यू परचेस्ड ऑन, इधर लिखा है ना 26,000 का फर्नीचर है, यू परचेस्ड ऑन 1st of October, तो 1st October से 31st March 6 months हो गए, तो 26,000 पे 6 months का डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1,300। सो नेट करके लिखो 26,000 माइनस 1,300, 24,200, 24,700। प्रीवियस, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में मैडम, प्रीवियस क्वेश्चन में फर्नीचर वाज 40,000, फर्नीचर वाज 40,000, 10,000 का सेल हुआ साल भर में, सो क्लोजिंग में कितने का बचेगा? 30,000। क्लोजिंग में कितने का बचेगा? 30,000। 40 का था, 10,000 सेल हो गया। कितने में सेल हुआ है? 10,000 का फर्नीचर यू सोल्ड एट 8,000, 2,000 का लॉस है। लॉस है डेबिट, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करता, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करता। असेट से हमेशा बुक वैल्यू 10,000 ही माइनस होता, ठीक है। सो 40,000 के फर्नीचर में से 10,000 का फर्नीचर बुक वैल्यू, अब कितने का फर्नीचर बाकी? 30। अगर डिप्रिसिएशन होता तो 30 पे देता, ठीक है। और 10,000 का 8,000 में सेल हुआ है, इसलिए दे दे लॉस। तो यहां पे लिखो, तो यहां पे लिखो ये लॉस आया कैसे। दिस लॉस इज 10,000 माइनस 8,000, 10,000 का फर्नीचर 8,000 में सेल किया। योर एंट्रीज व्हेन यू सेल द फर्नीचर, योर एंट्रीज, ध्यान देना, आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 8,000, sold at 8,000, loss account debit 2,000, to furniture account credit 10,000. This is your entry. मतलब कैश इंक्रीज होती है 8,000 से, इसलिए रिसीट साइड, रिसीट पे 8,000 लिखा है। लॉस इंक्रीज होगा 2,000 से, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे 2,000 है। और फर्नीचर क्रिएट हो रहा है, फर्नीचर डिक्रीजेस बाय 10,000, फर्नीचर से माइनस किया 10,000। दीज आर द इफेक्ट्स, फर्नीचर से माइनस किया, ठीक है। आगे ये इफेक्ट क्वेश्चन में होता है, कौन सा? ये वाला रिसीट साइड पे। This effect is in the question. This is already including the receipt side. 8,000 is on receipt side, कैश के डेबिट पे। हमें बाकी कंप्लीट करना है। 10,000 हमें माइनस करना है असेट से, और 8,000 डेबिट है, P&L डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, लॉस बोल के, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट 8:27 हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्वेश्चंस हुए। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कल हम फिर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आज शायद से दोपहर में आपका मैथ्स है। थैंक यू।